الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل شانه في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد وأباكم واحد ونبيكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے تقوی. آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ تقوی کے معنی کیا ہیں. تو جو عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں، جب اس کے اصل مادے کی طرف، تقوی کے اصل مادے کی طرف لوٹیں گے تو یہ وقع، یقی، وقایا، باب ضربہ یضربو سے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، خوف کھانا، بچاؤ کرنا. تقوی کو تقوی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تقوی انسان کی زندگی میں گناہوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے یہ بچاتا ہے، اسی لیے اس کو تقوی کہتے ہیں. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس شخص کو کہتے ہیں
کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کے راستے جو اس کے لیے متعین کیے ہیں اس راستے پر وہ چلے، اور حرام کے جو راستے ہیں ان راستوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہوا۔ شرعی تعریف جب اس کو دیکھیں گے تو بہت مشہور ہے یہ کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کس پرندے کا نام تقوی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال کیا تھا، کیا کبھی آپ خاردار راستوں سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ یعنی جھاڑیوں والے رستوں سے، ان درختوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جن درختوں میں کانٹے تھے، یعنی ان راستوں سے کبھی آپ گزرے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کئی بار میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس وقت آپ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ان راستوں کو آپ کیسے کراس کرتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور ان راستوں کو کراس کر جاتا ہوں، اس کو پار کر جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے کپڑے ان کانٹوں میں پھنس کر کے الجھ نہ جائیں، یعنی ان راستوں سے میں بچ کر کے نکل جاتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی تقوی ہے، یعنی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے، اس زندگی میں آ کر کے وہ دنیا کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی چمک اور دمک سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستوں پر یہ اپنی زندگی کو گزار دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی اہمیت آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو تقوی ہے اس کے مختلف انداز میں اس کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور اس کی تعداد 258 پہنچتی ہے۔ کہیں پر تتقون، کہیں پر متقی، کہیں پر اتقو، اس طریقے کے جو ورڈ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیے ہیں ان کی تعداد 258 پہنچتی ہے۔ تو یہ ہوا تقوی کی اہمیت، تقوی کے لغوی اور شرعی معنی۔ اب میں آپ کو اس اپنے اصل ٹاپک کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے وہیں سے اپنی بات کی آغاز کرنا چاہتا ہوں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ڈرو، بلکہ کہا اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ واقعات آئیں گے کہ آپ ان واقعات کو سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ڈر تھا، صحابہ کرام کے اندر یہ خوف تھا۔ آج آپ اوپری سطح سے لے کر کے نچلی سطح تک آپ چلے جائیے، یا اس کو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ آپ چپراسی سے لے کر کے پرائم منسٹر تک آپ چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ حرام خوری نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو حرام خوری دکھائی دے گی۔ اور اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا دور آ جائے گا کہ لوگوں کے پاس جو یہ مال آ رہے ہیں اس کا وہ دیکھ بھال نہیں کرے گا، اس کا معائنہ نہیں کرے گا، اس کی وہ جانچ اور پڑتال نہیں کرے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے، بس آنے دو۔ یعنی جب لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں گے، حلال اور حرام کے لحاظ کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور شاید کہ آج ہم اور آپ اسی دور سے بالکل گزر رہے ہیں۔ انسان
یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو میں کما رہا ہوں اس کو حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، بس آنے دیجئے، کیسے بھی وہ مال آئے بس آنے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لوگ اس دور سے گزرنے لگے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ڈرو، بلکہ فرمایا اللہ سے ڈرو ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دنیا میں آدمی بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، سامنے سے شیر آ جائے آدمی کی ہمت نہیں پڑتی اس کے سامنے جانے کی، کیوں؟ ڈر رہا ہے۔ گھر میں آگ لگ جائے آدمی گھر سے باہر بھاگ رہا ہے، کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں جل نہ جاؤں۔ گھر کے اندر اگر سانپ نکل آئے آدمی اس کے منہ میں انگلی نہیں ڈال رہا ہے، جانتا ہے کہ اگر اس کے منہ میں انگلی ڈالوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام سے وہ واقف ہے، اس لیے وہ اپنے انگلی کو اس کے منہ میں ڈالنے سے ڈرتا ہے۔ تو سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آپ اس کے منہ میں انگلی نہیں ڈالیں گے، آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ شیر سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آپ اس کے سامنے نہیں جائیں گے، آپ اس کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آپ اس میں جمپ نہیں لگائیں گے، کودیں گے نہیں، آپ اس کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ آگ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، شیر سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، آگ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ بھاگو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جن کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اس کام کو ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ورنہ صوفیوں والا عقیدہ نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کے جماعت کے لوگ بہت سارے نہیں جانتے، بس اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ صوفیوں والا عقیدہ اللہ ذرے ذرے میں موجود ہے، معاف کیجئے گا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ ساتویں آسمان پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ ذرے ذرے میں اللہ، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ ٹوائلٹ کے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین بذات خود جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے باڈی کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس طریقے سے اللہ نہیں، بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ بذات خود نہیں ہے۔ اس کی اصلاح ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ معاف کیجئے گا آج کا مسلمان، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا ہے، سامنے سے باپ آ جائے اس کو بجھایا اور پھینک دیا، بڑا بھائی آ جائے بجھائی اور پھینک دی۔ آپ اس سے پوچھیں کہ تو نے سگریٹ کیوں پھینکا؟ جواب دے گا باپ آ گیا تھا، ادب کر رہا ہوں اس لیے پھینک دیا۔ بڑا بھائی آ گیا تھا، رسپیکٹ کر رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، اس لیے اس کو پھینک دیا۔ اگر یہی سوچ ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ پیدا ہو جائے، ایک شراب کی بوتل ایک نوجوان اگر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے، اس نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ باپ نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، ماں نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، بہن نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، لیکن اللہ کی نگاہیں، اس کی نظریں تو ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اگر ایک انسان اتنا بھی اگر سوچ لیا ہوتا تو بہت حد تک اپنی گناہوں پہ کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہم جتنا اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، جتنا ہم اپنے بھائی سے ڈرتے ہیں، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے ڈریں، زیادہ حقدار اللہ رب العالمین ہے کہ اس سے ڈرا جائے، لیکن معاملہ اس کے برعکس الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کو آپ کو سمجھانے اور سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے۔ آپ نے ٹرینوں کا سفر کیا ہوگا، ایک ڈبے کے اندر بہت ساری سیٹیں ہوتی ہیں،
आमने सामने जो सीटें होती हैं वो 3 सीटें होती हैं, एक अपर, मिडल और एक लोअर। फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपकी सीट मिडल वाली है, बीच वाली सीट आपकी है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगती है, ट्रेन 200-150 स्पीड के अंदर वो अपनी पटरियों पर दौड़ रही है, अपनी मंजिल की तरफ रमा और दमा है। रात के 2 बजती हैं, आपको पेशाब लगती है और आप पेशाब करने के लिए टॉयलेट की तरफ जाते हैं। और जब पेशाब करके जब वापस आते हैं, अपने सीट पर जब लेटने के लिए जाते हैं, और जैसे ही लेटने जाते हैं आपकी निगाह उस लोअर बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उस पर जाकर के पड़ती है, और आप ये मंजर देखते हैं कि उसके जेब से 500 नोट की गड्डी बाहर निकल रही है। आपने उस पर हाथ मार दिया, लेकिन उसी स्ना के दरमियान, उसी दौरान आपकी निगाह उस अपर बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उस पर जाकर के पड़ती है, और आप ये देखते हैं कि आपकी इस हरकत को वो आदमी देख रहा है। ईमानदारी के साथ आप बताइए, आप उस वक्त क्या कहेंगे? अपने सीने पर हाथ रख करके आप फैसला कीजिए। आप झूठ बोलेंगे, इसका पैसा गिर रहा था, इसके जेब के अंदर रख रहा था। या फिर आप ये रास्ता अपनाएं कि आप चलती हुई ट्रेन से उस पैसे को लेकर के कूदें, और आप अपनी जान का खतरा मोल ले नहीं सकते, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप उस पैसे को उठा करके वहीं रख दें जहां से आपने उठाया था। या फिर आप ये तरीका अपनाएं कि जो अपर बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उससे ये कहें कि देख, आधा तेरा और आधा मेरा, देखना किसी से बताना नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से आप आग से डरने का हक अदा करते हैं, शेर से डरने का हक अदा करते हैं, सांप से डरने का हक अदा करते हैं, उस अपर बर्थ पर लेटे हुए उस आदमी से डरने का हक अदा करते हैं। अगर एक इंसान जर्रा बराबर भी इतना तसव्वुर अगर वो अपने जहन में कर ले आता कि जो दुनिया के अंदर जो हम बुराइयां कर रहे हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला इन तमाम बुराइयों को हमारे सामने पेश करने पर कादिर है, तो हम बहुत हद तक अपने गुनाहों पे कंट्रोल कर सकते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, वैसे ही डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल रहो, पूरे के पूरे मुसलमान रहो। ईमानदारी के साथ हम और आप अपने सीने पर हाथ रख करके यह फैसला करें और यह सोचें कि क्या हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं, क्या हम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हैं। अब आइए दूसरी आयत करीमा की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिले। चलिए अब दूसरी आयत करीमा की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, वैसे ही डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान को यह सोचना चाहिए, यह गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। असल चीज तो यही है, ये जिंदगी तो बस 60 साल 70 साल 80 साल इस दुनिया के अंदर हमें और आपको रहना है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कड़वी चीज और हकीकत है जिसका एतराफ आपका दुश्मन भी करता है तो वो ये है कि जो इस दुनिया में आया है उसको यहां से जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है। सबसे अटल हकीकत यही है जो आपका दुश्मन भी मानता है। सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर बादशाह 6 महीना अपने मुल्क में हुकूमत करता था, 6 महीना जंगलों में चला जाया करता था और उन धसी हुई कब्रों पर बैठ जाया करता था और उनसे सड़ी हुई हड्डियों को निकाल करके अपने सामने रख लेता था और उनको देख करके ये वजीफा पढ़ा करता था, अये हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी, कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा।
अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसे थे, कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ये सिकंदर बादशाह 6 महीना अपने मुल्क में हुकूमत करता था और 6 महीना जंगलों में चला जाया करता था और इस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। तो हर इंसान को अपनी मौत का एहसास होना चाहिए। और वही सिकंदर बादशाह मेरे प्यारे साथियों, जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की, जब वो मरने लगा तो उसने लोगों से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी 3 ख्वाहिशें पूरा कर देना। एक ये कि मेरे को सिर्फ वही लोग कंधा देंगे जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्यों है? कहा ये इसलिए जब मैं मर जाऊं और लोग मुझे नहला धुला करके जब कब्रिस्तान की तरफ रवाना होने लगे तो सिर्फ मुझे वही लोग कंधे देंगे जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा क्यों? उसने कहा ताकि दुनिया वालों को पता चले कि उस सिकंदर बादशाह को भी मौत ने मात दे दी जो आधी दुनिया पर हुकूमत की। बड़े बड़े डॉक्टरों को ने, बड़े बड़े डॉक्टरों और बड़े बड़े तबीबों और बड़े बड़े हकीमों को मौत ने वो मात दे दी कि इतना बड़ा सिकंदर बादशाह, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद भी उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। दूसरी ख्वाहिश उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो जितना मैंने दौलत कमाया है उस दौलत को मेरे रास्ते पे डाल देना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया वालों को यह पता चल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत होने लगूं, लोगों को मालूम हो जाए कि सिकंदर बादशाह बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा वो इंसान था, लेकिन जब उसकी मौत आई, उसके जिस्म से उसकी रूह जब निकली, परवाज कर गई, तो उसकी दौलत काम ना सकी, उसकी दौलत यहीं की यहीं रह गई। और तीसरी ख्वाहिश उसने ये जाहिर की थी कि जब लोग मुझे दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाने लगे तो मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि सिकंदर बादशाह दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। दुनिया वाले लोग इससे इबरत हासिल करें, इससे नसीहत हासिल करें कि सिकंदर बादशाह आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बावजूद भी वो इस दुनिया से कुछ ना लेके जा सका, और जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो क्या लेकर के जाएंगे, जो अपनी जिंदगी को, इस जिंदगी को बनाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, हमें और आपको अपनी मौत का एहसास होना चाहिए। जितना हम और आप अपनी मौत को याद करेंगे उतना ही हमारे और आपके अंदर तकवा पैदा होगा, उतना ही हमारे और आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा। अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आखिर आपकी उम्र तो अभी इतनी नहीं हुई है कि आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाए, लेकिन हाँ बालों में सफेदी आ गई है, दाढ़ी मुबारक सफेद होने लगे हैं, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी है, खाल आपके सिकुड़ने लगे हैं, आखिर क्या वजह कि आप इतने जल्दी बूढ़े नजर आने लगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, मेरे साथियों, मुझे सूरे क़यामा ने, मुझे सूरे हाक्का ने, मुझे सूरे नबा ने, मुझे इन जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इसमें क़यामत का हौलनाक मंजर है, इसमें क़यामत का दर्दनाक मंजर है, मुझे इस मंजर ने बूढ़ा कर दिया है। तो हर इंसान को अपने बुढ़ापे का एहसास होना चाहिए। जितना एक इंसान अपनी मौत को याद करेगा, जितना एक इंसान अपने बुढ़ापे को याद करेगा, उतना ही उसके अंदर तकवा पैदा होगा, और जितना हमारे और आपके अंदर तकवा पैदा होगा उतना ही हमारे लिए और आपके लिए जन्नत के रास्ते आसान होते चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, आज हमारे अंदर क्या है? आज ना तकवा है, ना अल्लाह का डर है, ना खौफ है, ना हमारे और आपके अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक है। ये तमाम चीजें हमसे और आपसे खत्म होती चली जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल की तरफ इशारा किया है कि अगर आप अपनी सफ़ों के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करना चाहते हैं तो उन चूटियों से मिसाल हासिल कीजिए, उन चूटियों से इबरत हासिल कीजिए। वइज़ा तवल्ला वादिन नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका लश्कर
चोटियों की वादी के पास आया तो एक चींटी जो सारी चोटियों की सरदार थी, सबको मुखातब करके कहने लगे, अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, अय चोटियों तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ, अय चोटियों तुम अपने अपने सुराखों में चली जाओ, अय चोटियों तुम अपने अपने रहने की जगहों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रौंद ना डाले, तुम्हारी वजूद को ना मिटा दे, तुम्हारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद ना कर दे। उसे एक चींटी की बात सारी चींटियां मान लेती हैं और अपने अपने बिलों में चली जाती हैं, अपने सुराखों में चली जाती हैं और जान देने से महफूज रह जाती हैं। लेकिन आज हम और आप एक इंसान बनकर के भी, अशरफुल मखलूकात बनकर के भी अपने जिम्मेदारों की बात मानने को तैयार नहीं, अपने वलमा की बात सुनने को तैयार नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं। उंदुल्स, मराकश, स्पेन, इन इलाकों का आप दौरा कीजिए और पढ़िए और देखिए यहां से मुसलमानों को क्यों सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, यहां पे किताबों को क्यों नजर आतिश कर दिया गया, इल्म का समंदर क्यों बहा दिया गया और लाइब्रेरियों में क्यों आग लगा दिया गया। इन तमाम चीजों के पीछे हमारी और आपकी ना इत्तिफाकी नजर आएगी, इन तमाम चीजों के पीछे हमारी और आपकी ना इत्तिफाकी नजर आएगी और ये तभी हमारे और आपके साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं। देख लीजिए इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे और आपके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। देखिए इराक और ईरान के अंदर आग लगी हुई है, वहां पर शियों को सुन्नियों से और सुन्नियों को शियों से लड़ा करके जो गेम खेला जा रहा है, हमें और आपको उसको समझने की जरूरत है। देख लीजिए खुद पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों के अंदर बमबारियां हो रही हैं। याद रखिए अगर अभी हम और आप नहीं जागे तो आने वाला दिन इससे भी खतरनाक होने वाला है। हमें और आपको समझना है, समझने की जरूरत है। और इसी नोएडा के अंदर एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि एक मुस्लिम के घर में गाय का गोश्त है और 150-200 आदमी लाव लश्कर के साथ उसके घर में घुस जाते हैं और मार मार करके उसको हलाक कर देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अब इन वाकयात से अगर हम नहीं सुधरे, हम अगर मस्जिदों से नहीं जुड़े, तो याद रखिए ये हदीस मैं पेश कर देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ये जो मस्जिदों को मैं देख रहा हूं कि भरी हुई हैं, अभी असर के अंदर देखना ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, इससे ज्यादा नहीं। ये हदीस सुनिए और इससे इबरत हासिल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, कि जो लोग फर्ज नमाज को कसदन जानबूझ करके छोड़ते हैं, फर्ज नमाज को जानबूझ करके अगर छोड़ते हैं तो अल्लाह की जिम्मेदारी उस पर से हट जाती है। अब मरो कटो, तुम बर्मा के अंदर भी मारे जाओगे, गुजरात के अंदर भी तुम्हारी कटाई होगी और चेचनिया और बोस्निया के अंदर भी तुम मारे जाओगे। गाजर और मूली से बदतर काटे जाओगे। गाजर और मूली को काटने से पहले कम से कम उसको धुल लिया जाता है। तुमको मारने से पहले यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अगर हमने जानबूझ करके फर्ज नमाज को अगर कसदन जानबूझ करके छोड़ा, फकत बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी हट जाती है। हजरात गिरामी, मैं आपके सामने ये जो तकरीरें होती हैं, आपके सामने कुछ वाकयात रखना चाहता हूं। हो सकता है कि वो वाकयात हमारे खिलाफ चले जाएं, मस्जिद में बैठे हुए लोगों के खिलाफ जाएं, मस्जिद के जिम्मेदारान के खिलाफ जाएं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप उन वाकयात से ये मत समझिएगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है या हमें ढाल बना करके हमारे ऊपर इन वाकयात को पेश किया जा रहा है। आप ये समझिएगा कि हमारे लिए उसमें इबरत क्या है, हमारे लिए उसमें नसीहत क्या है। मैं इससे माफी चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खलीफा मुतय्यन किया गया, जब उनको जिम्मेदार बनाया गया, तो पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची रोने लगी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला, आप उसके घर गए, पूछा बच्ची क्यों रो रही हो? उसने कहा तो आप लोगों के जिम्मेदार बन गए, कल तक जब आप जिम्मेदार नहीं थे तो हमारे घर आ जाया करते थे, बकरियों का दूध दिया करते थे, अब आप हमारे घर क्यों आएंगे? वो शायद वो बच्ची वो सोच रही थी कि आगे चल करके ऐसे ही जिम्मेदार पैदा होंगे, वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। तो उस बच्ची ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब तो आप लोगों के जिम्मेदार बन गए, कल तक जब आप लोगों के जिम्मेदार नहीं थे हमारे घर आया करते थे और उन बकरियों का दूध दिया करते थे, क्योंकि हमारा बाप नहीं है, मेरी माँ दूध दोना जानती नहीं है, और आप मेरे घर आकर के बकरियों का दूध दूध करके मुझे दे दिया करते थे। अमीरुल मोमिनीन का जवाब क्या था? कहा रोने की जरूरत नहीं है, कल मैं जिम्मेदार नहीं था तब मैं तेरे घर आता था, अब तो मैं लोगों का असल खादिम बन गया हूं, असल जिम्मेदार तो अब बना हूं। जब मैं सुबह सवेरे ऑफिस के लिए रवाना होऊंगा, ऑफिस के लिए निकलूंगा, तो तेरी बकरी का दूध दो करके तब मैं तेरे घर जाऊंगा, तब मैं ऑफिस में जाऊंगा, और जब वहां से लौटूंगा तब तेरी बकरी का दूध दो करके और तुझे दे करके तब मैं अपने घर जाऊंगा। ये एक जिम्मेदारी की एहसास है। हर इंसान जिसको जिस चीज का जिम्मेदार बनाया गया है वो उस फील्ड का जिम्मेदार है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अगर नहीं निभाता, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल के तहत कल कयामत के दिन हर इंसान से सवाल किया जाएगा, हर इंसान से पूछा जाएगा। मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, आइए एक वाकया और आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल 2 महीना 10 दिन तक इन्होंने खिलाफत किया। आइए इनकी जिंदगी से हट करके थोड़ा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की तरफ चलते हैं। इनकी जिंदगी का एक जबरदस्त वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये खलीफा हैं, लोगों के जिम्मेदार हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल तक खिलाफत की, 10 साल तक वो लोगों के जिम्मेदार रहे। किसी ने खबर दिया कि बैतुल माल से 2 ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गए, 2 ऊंट रस्सी तोड़कर निकल गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस्म पर सिर्फ लुंगी बंधी हुई है, पैरों में चप्पल नहीं, घर से निकल पड़ते उन ऊंटों को तलाश करने के लिए। गर्मी की शिद्दत तेज है, सूरज सर के ऊपर है। घर से जैसे वो निकलते हैं ऊंटों को तलाश करने के लिए, देखते हैं कि वो सामने ऊंट भागे जा रहे हैं, उन ऊंटों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते थोड़ा ऊंटों के करीब आए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका मकान थोड़ा अच्छा बना हुआ था, वो अपने घर के ऊंचाई पर, घर के बलंदे पर वो चढ़ जाते हैं और दूर से देखते हैं कि आखिर ये कौन आदमी है जो ऊंटों के पीछे पीछे भाग रहा है। दूर से देखते हैं कि आखिर ये कौन आदमी है जो इन ऊंटों के पीछे पीछे दौड़ रहा है। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते भागते थोड़ा करीब आए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे घर में आ जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, आराम कर लीजिए, मैं अपने गुलामों को इनके उन ऊंटों के पीछे दौड़ा देता हूं, वो पकड़ करके लेकर के आएंगे। लेकिन जवाब यह था, उस्मान ठंडा पानी तुझे मुबारक हो, घर का साया तुझे मुबारक हो, लोगों ने मुझे जिम्मेदार बनाया है। कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत जब लगेगी और पूरे दुनिया के लोग जब वहां होंगे, तब अल्लाह सवाल करेगा कि उमर 2 ऊंट रस्सी तोड़ करके भाग गए थे, क्या तुम उसको तलाश करने के लिए निकले थे या नहीं निकले थे? कल मैं अपने रब के सामने जवाब क्या दूंगा? और इतना कह करके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर के उन ऊंटों को पकड़ लेते हैं और ले जाकर के जहां ऊंट रहते हैं उसके बारे में लेकर जाते हैं, और वहां जो उसका जिम्मेदार होता है उससे पूछते हैं कि आखिर ये ऊंट क्यों भागे। वो जवाब देता है कि अमीरुल मोमिनीन, इनके टॉयलेट के रास्ते में
पायखाने के रास्ते में जख्म हो गया था और उस जख्म की शिद्दत को वो बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो रस्सी तोड़कर भाग निकले। अमीरुल मोमिनीन हैं, लोगों के जिम्मेदार हैं, वो पहाड़ी पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहां से जड़ी बूटियों को तलाश करते हैं और जड़ी बूटियों को लेकर आकर अपने हाथों से उन दवाइयों को बनाते हैं और खुद अपने हाथों से उस ऊंट के टॉयलेट के रास्तों में अपने हाथ को दाखिल कर करके और उस दवाई को लगाते हैं। यह भी एक जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों। जिस शख्स के अंदर जिम्मेदारी का एहसास हो जाए वो ये नहीं देखता कि मैं आज इंसान को अगर कुर्सी मिल जाए तो अपने आप को इंसान क्या समझता है। हर इंसान इससे वाकिफ है, हर इंसान इसको अच्छी तरीके से जानता है। सामीन कराम, मालिक इब्न दीनार, एक वाकया रख देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। लोग कहते हैं कि ये मालिक इब्न दीनार बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार आदमी है। ये रात को उठ करके तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं। तो लोगों ने जब इस हाल में देखा तो कहा मालिक इब्न दीनार तो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाला है, दिन में रोजा रखता है और रात में उठ करके वो अल्लाह की इबादत करता है। जब मालिक इब्न दीनार ने सुना तो कहा लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूं। अल्लाह से डरना और मुत्तकी और परहेजगार अगर किसी को देखना है तो उमर बिन अब्दुल अजीज को देखिए। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लोगों के जिम्मेदार हैं। अगर मुत्तकी और परहेजगार देखना है तो उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, लोगों के जिम्मेदार हैं। सोने और चांदी का ढेर उनके कदमों में आया लेकिन उन्होंने उसको पैरों के नोक से ठुकरा दिया, जूते की नोक से ठुकरा दिया। दुनिया मुंह खोल के उनके सामने आई लेकिन उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। उनके पास सिर्फ एक कमीज थी। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बहुत बड़े मालदार इंसान थे लेकिन जब लोगों ने उनको जिम्मेदार बनाया तो अपनी पूरी जिंदगी एक कमीज के अंदर गुजार दी। वो जब गंदी हो जाती थी उसी को धुलते और सुखा करके उसी को पहना करते थे। कहा मुत्तकी और परहेजगार देखना है तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को देखिए। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम उनके साथ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। लोगों ने उनके सामने शहद से मिला हुआ एक गिलास पानी पेश करते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और रोने लगे। इतना रोए कि उनका दाढ़ी मुबारक तर हो गया। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हैं। आखिरकार जब वो रो करके जब खामोश हुए तो कहते हैं कि मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे थे। कहा जब मेरे सामने ये शहद से मिला हुआ एक गिलास जब पानी पेश किया गया तो मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वहां पर कोई चीज नहीं देखी जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से भगा रहे हों, अपने से दूर कर रहे हों। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल आखिर कौन सी वो चीज़ है, मुझे कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि दुनिया की ये रंगीनियाँ, दुनिया के मालो दौलत मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँ, मैं उनको कबूल कर लूँ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे दूर हो जाए। दुनिया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे कबूल नहीं करेंगे, फिर भी मैं जोर लगा रही थी। इस वाक़ये को मैं सुन करके रोने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके इस शहद से मिला हुआ पानी पी लूं। यह भी अल्लाह के अंदर, यह भी एक डरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा लोगों के अंदर था। हजरात गिरामी और कई सारे वाक़यात हैं, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इन वाक़यात को आपके सामने पेश करूंगा। यही वो चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह
تو ہمارے اور ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اے اللہ تو اپنا خوف پیدا کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو ہماری صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے۔ اے اللہ جو ہم سے بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملا عاجلا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں سے قرض دار ہیں اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔